जय हिंद दोस्तों, गुरु द्रोण डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, आज मैं प्रदीप कुमार आप लोगों के समक्ष नाउन का पहला वीडियो लेकर आया हूं। तो चलिए, नाउन चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए आप हमारे नाउन का पहला वीडियो देखें। नाउन, व्हाट इज नाउन? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल्स, feeling or an idea. These all are known as a noun. Is a word used as the name of a person, place, thing, animal, feeling or an idea. It is also called naming word. Example: Ram, Patna, the Ganga, Rose, hardness, honesty, army, crowd, water, iron, etc. These all are name of some person, place or things. So these all are examples of noun. To understand more clearly, let us see some more examples. Mr. Narendra Modi is the Prime Minister of India. Here Narendra Modi, Prime Minister, and India, these are noun. Kolkata is the capital of West Bengal. Kolkata, capital, and West Bengal are noun. Honesty is the best policy. Honesty and policy are noun. Your happiness depends on you. Here happiness is a noun. Now let us see kinds of noun, different types of noun. Noun is classified into 5 categories. Let us see it one by one. First one is proper noun, means व्यक्तिवाचक संज्ञा. Second one is common noun, means जातिवाचक संज्ञा. Third one is collective noun, means समूहवाचक संज्ञा. Fourth one is material noun, means द्रव्यवाचक संज्ञा. And fifth one is abstract noun, means भाववाचक संज्ञा. Now let us see it one by one. First one is proper noun. A proper noun is the name of particular person, place, thing or animal. Examples are Ram, Shyam, Patna, Tommy, the Indian Express, India, Holi, January, the Ganga, the Everest, the sun, etc. These all are name of a particular person, place or things. So these all are examples of proper noun. Proper noun means one's own. It means it is person's own name. Proper nouns are always written with a capital letter at the beginning. Second one is common noun. A common noun is a name given in common to every person, place or thing of same class. Means same class के किसी person, place और things को जो name दिया जाता है वह है आपका common noun. For example, common means shared by all. Common means shared by all. For example, boy. This is shared by many boys. Ram, Shyam, Mohan, Sohan. These all are boys. They all are boys. King, town, city, bird, school, brother, etc. These all are common noun. Ashoka was a great king. Ashoka was a great king. Here Ashoka is a proper noun, whereas king is a common noun. Hari is a good boy. Here Ashoka and Hari are proper noun, whereas king and boy are common noun. Delhi is a proper noun, whereas city is a common noun. India is a proper noun, whereas country is a common noun. The Ramayana is a proper noun, while book is a common noun. There are many books, but Ramayana is a name of one book, so it is a proper noun, whereas book is a common noun. DAV is proper noun, while school is a common noun. There are many schools, but name DAV is one of them. So DAV is a proper noun, whereas school is a common noun. Third one is collective noun. Collective, it is a name of a number or collection of person or things taken together and spoken as one whole. Example: crowd, mob, army, flock, herd, fleet, jury, family, nation, parliament, committee. These all consist many members. These all consist a group of members. Like crowd means it is a group of persons. Mob, it is also group of persons. Army, a group of soldiers. So these all are collective nouns. A fleet means collection of ships or vessels. An army means a group of soldiers. A crowd means collection of people. A flock of birds is flying over a tree.
Generally, collective nouns are used as singular noun, but it is used as plural when it shows some differences or anything is told about each member. Example: the French army was defeated at Waterloo. यहाँ पे कलेक्टिव नाउन का यूज हमेशा सिंगुलर नाउन की तरह होता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है जब इसको एक एज ए होल की तरह हम यूज करते हैं। लेकिन जब इसके बीच डिफरेंसेस होता है और एनीथिंग इज टोल्ड अबाउट ईच मेंबर के बारे में अलग अलग चीज़ें बोला जाता है तो कलेक्टिव नाउन एज ए प्लूरल नाउन की तरह यूज होता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। चलिए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। द फ्रेंच आर्मी वाज डिफीटेड एट वाटरलू। यहाँ पे फ्रेंच आर्मी एज ए होल यूज हुआ है तो यहाँ पे इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। ए हेड ऑफ केटल इज पासिंग। ए हेड ऑफ केटल मीन्स यूनाइटेड है। ये एज ए होल का हम बात कर रहे हैं तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। ए फ्लॉक ऑफ बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द ट्री। द टीम वर डिवाइडेड ओवर द इश्यू ऑफ कैप्टनशिप। यहाँ पे टीम क्या है? डिवाइडेड है इश्यू ऑफ कैप्टनशिप पे तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है। टीम यहाँ पे एज ए प्लूरल नाउन यूज हुआ है तो प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है। द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स। ऑडियंस, वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट पर्सन, वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट ऑडियंस। सो ऑडियंस एज ए प्लूरल नाउन यूज हुआ है और उसके साथ प्लूरल वर्ब हैव का यूज हुआ है। द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। ज्यूरी वर डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन तो यहाँ पे भी आपका प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है। द ज्यूरी डिसाइडिंग द मैटर। ज्यूरी इज डिसाइडिंग द मैटर मीन्स ज्यूरी, हियर ज्यूरी इज वर्किंग एज ए होल। सो यहाँ पे आपका ज्यूरी एज ए सिंगुलर नाउन यूज हुआ है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब इज का यूज हुआ है। फोर्थ वन इज मटेरियल नाउन। मटेरियल, इट इज द नेम ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस बाय विच अदर थिंग्स कैन बी मेड। जिससे अदर थिंग्स को बना सकते हैं उससे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल है आपका वाटर, मिल्क, वुड, ब्रेड, सॉल्ट, आयरन, सिल्वर वूल, सिल्वर, wool, sand, gold, etc. These all are material and through these all we can make different things. So these are example of material noun. Material nouns are not countable, so generally singular verb is used with it. Article is not used before it. Now let us see it through some examples. The necklace is made of gold. She has purchased a tea set of silver. ही गॉट हिज फर्नीचर मेड ऑफ सालवुड। तो यहाँ पे नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड। गोल्ड आपका मटेरियल नाउन है जिससे नेकलेस बना है। सी हैज परचेज अ टी सेट ऑफ सिल्वर। टी सेट सिल्वर का बना है तो सिल्वर आपका मटेरियल नाउन है। ही गॉट हिज फर्नीचर मेड ऑफ सालवुड। फर्नीचर इज मेड ऑफ सालवुड तो सालवुड यहाँ पे आपका मटेरियल नाउन है। Fifth one is abstract noun. Abstract noun, it is usually the name of quality, emotion, action or state considered apart from the object to which it belongs. तो name of any quality, emotion, action और state ये आपका abstract noun है। एग्जाम्पल आपका जैसे क्वालिटी में आपका गुडनेस, आपका क्वालिटी अच्छाई, काइंडनेस दयालुता, वाइटनेस सफ़ेद, वाइटनेस हो गया, डार्कनेस हो गया, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, हार्डनेस, ब्राइटनेस, ब्यूटीफुल, स्ट्रॉन्ग, दीज ऑल आर नेम ऑफ ए क्वालिटी। सो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट वन इज एक्शन। एक्शन में आपका लाफ्टर, थेफ्ट, मूवमेंट, जजमेंट, हेटर्ड, मॉकरी, दीज ऑल आर एक्शंस एंड दीज आर एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। स्टेट आपका हो गया ब्रदरहुड, childhood, youth, slavery, sickness, death, poverty, etc. These all are also example of abstract noun. Emotion में आपका happiness, sadness, anger, fear, etc. These all are also examples of abstract noun. Abstract noun is generally used in singular. Abstract noun generally singular में यूज होता है तो इसके साथ आपका singular verb का यूज होगा। एग्जाम्पल है पीपल रिस्पेक्ट द ब्रेविटी ऑफ ए सोल्जर। इसके पहले देखिए आप ए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पे ऑनेस्टी आपका एज ए सिंगुलर नाउन यूज हुआ है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब
इज का यूज हुआ है। Abstract noun is formed in different ways. First one is from adjective. We can make abstract noun through adjective. Example, kindness is abstract noun formed from the adjective kind. Goodness is abstract noun formed from the adjective good. Brevity from brave and honesty from the honest. We can make abstract noun through verb. एग्जाम्पल, एज ओबीडियंस फ्रॉम ओबे, ओबे से आपका ओबीडियंस बना है और ग्रो से ग्रोथ बना है। वी कैन मेक एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम कॉमन नाउन ऑल्सो। एग्जाम्पल, चाइल्डहुड इज मेड फ्रॉम चाइल्ड एंड स्लेवरी इज मेड फ्रॉम स्लेव। इन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर नाउन्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। तो दोस्तों आपने देखा कि नाउन को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में नाउन को 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला है आपका प्रॉपर नाउन जो आप पढ़ चुके हैं, सेकंड वन इज काउंटेबल नाउन एंड थर्ड वन इज अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन को आप पहले आप पढ़ चुके हैं। सेकंड है काउंटेबल नाउन, द नाउन विच कैन बी काउंटेड। एग्जाम्पल, बुक, पेन, एप्पल, बॉय, डॉक्टर, नर्स, आर्मी, टीम एट्सेट्रा। इट कंसिस्ट कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन। कॉमन और कलेक्टिव नाउन आपका काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है। और काउंटेबल नाउन के साथ यदि ये सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, और यदि ये प्लूरल नाउन है और ये यदि डिवाइडेड है तो इसके साथ प्लूरल नाउन का यूज होगा। और यदि यूनाइटेड है, एज ए सिंगल ग्रुप के रूप में यूज हो रहा है, एज ए सिंगल ग्रुप के रूप में यूज हो रहा है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। अनकाउंटेबल नाउन, द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड। एग्जाम्पल, वाटर, शुगर, हैप्पीनेस, चाइल्डहुड, मिल्क, मनी, विजडम एट्सेट्रा। इट कंसिस्ट मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, लाइक है वाटर, शुगर, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। हैप्पीनेस, हमारी खुशियाँ, इसको काउंट नहीं कर सकते। चाइल्डहुड, बचपना, इसको भी काउंट नहीं कर सकते। तो ये सारे आपके अनकाउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल हैं। इसके अंतर्गत आपका मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन को रखा गया है। चलिए देखते हैं इसके साथ कौन सा वर्ब, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ कौन सा वर्ब, एडजेक्टिव और आर्टिकल का यूज होता है। तो वर्ब, सिंगुलर वर्ब विद सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल वर्ब विद प्लूरल नाउन। काउंटेबल नाउन यदि सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, और प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा एज ए सिंगुलर नाउन यूज होता है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। एडजेक्टिव काउंटेबल नाउन के साथ मैनी, फ्यू, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ एट्सेट्रा एडजेक्टिव का यूज होता है। वेरे अनकाउंटेबल नाउन के साथ आपका मच, लिटिल, क्वांटिटी ऑफ, अ पीस ऑफ का यूज होता है। जैसे हम मच शुगर कहेंगे या मच वाटर कहेंगे, मैनी वाटर या मैनी शुगर नहीं कहेंगे। ऐसे ही मैनी बॉयज़ कहेंगे, मच बॉय नहीं कहेंगे। मैनी पीपल कहेंगे, मच पीपल नहीं कहेंगे। फ्यू पीपल कहेंगे, लिटिल पीपल नहीं कह सकते, गलत है। आर्टिकल, अब देखते हैं आर्टिकल। तो काउंटेबल नाउन के साथ ए और एन का यूज होता है। इट कैन बी यूज, आर्टिकल ए और एन कैन बी यूज विद काउंटेबल नाउन, वेयर एज ओनली द कैन बी यूज विद अनकाउंटेबल नाउन। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।